نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ کافروں نے اپنے رسولوں کے پیغام سن کر ان سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے شہروں اور اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ پھر ان کافروں کی ان باتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کی طرف وحی فرمائی کہ ان کے کاموں کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے اور تم ان کی وجہ سے فکر مند نہ ہو۔ یہ جو اپنے شہروں سے اور اپنی سرزمین سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے کہا کہ کیونکہ یہ مالک نہیں بلکہ فرمایا کہ ہم ضرور ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ امام محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں سے کافروں کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ جب رسولوں کی امتیں حد سے بڑھ گئیں کفر میں تو فرمایا انہیں اپنے رسولوں کو اذیتیں پہنچانے کی دھمکیاں دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی کہ ان کی امتوں میں سے جنہوں نے وہ کفر کیا تھا اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دے گا۔ وہ اللہ نے پیغام دیا اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مدد اللہ فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں در حقیقت اس آیت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کہ مشرکین کے لیے واحد ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور رسول اللہ کے خلاف جرأت کرنے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ امتوں کے کافروں جیسا ہوگا۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ثابت قدمی کی ترغیب اور آپ کی قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کی تلقین کی کہ جس طرح سابقہ انبیاء نے وہ صبر کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ اس آیت میں بھی یہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی خبر دی کہ محبوب انجام کا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور سابقہ امتوں میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یہ وہی اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ وہ ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد مومنوں کو ان کی سرزمین میں آباد کرے گا۔ یہ بشارت اس کے لیے ثابت ہے کہ فرمایا کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے عذاب کے بارے میں جو بتایا ہے اس سے خوف زدہ ہو، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچتا ہو۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم بھی آخرت کے عذاب کو معمولی نہ سمجھیں۔ آخرت کا عذاب جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس سے ہمیں بھی ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف یہ دل میں ہمارے بھی ہونا چاہیے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ
जहन्नम वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु वयअतीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित वमिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़। और उन्होंने फैसला तलब किया और हर सरकश हर धर्म नाकाम हो गया। जहन्नम उसके पीछे है और उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा, बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े घोंट लेगा और ऐसा लगेगा नहीं कि उसे गले से उतार ले, और उसे हर तरफ से मौत आएगी और वो मरेगा नहीं, और उसके पीछे एक और सख्त अजाब होगा। इस आयत के दो माना किए गए। एक माना ये कि उलमा ने फरमाया कि जब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के ईमान कबूल कर लेने की उम्मीद न रही तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अपनी कौम के खिलाफ मदद तलब की और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन पर अजाब नाजिल कर देने की दुआ की। दूसरा माना ये है कि फरमाया कि काफिर ये गुमान रखते हुए कि अपने और रसूलों के दरमियान अल्लाह से फैसला तलब किया कि वो हक पर हैं और अंबिया हक पर नहीं। इस आयत में उन्हें बताया गया कि वह ख़ाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, कि हर सरकश और हर धर्म जो है वो नाकाम हो गया और अल्लाह ने अपने अंबिया की मदद की और हक के मुखालिफ जितने सरकश हैं वो काफिर हों या कोई भी हो, फरमाया कि वो नामुराद हुए और उनकी खुलासी की कोई सूरत नहीं रही। फिर जहन्नम का तज़किरा किया गया कि जहन्नम में जब इन काफिरों को डाला जाएगा तो वो जहन्नम का मंजर बताया गया कि वो जहन्नम में इन काफिरों को डालने के बाद पीने के लिए क्या दिया जाएगा। तो फरमाया कि पीने के लिए काफिर को पीप का पानी पिलाया जाएगा और वो पीप का पानी इतना कड़वा होगा कि फरमाया कि उसकी कड़वाहट की वजह से उसको पीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पीना पड़ेगा। और फरमाया कि बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े वो घूंट लेगा और उसकी कबाहट और कराहट पर उसे ऐसा लगेगा कि वो उसे गले से उतार नहीं सकेगा। और फरमाया मुख्तलिफ अज़ाबात की सूरत में हर तरफ से मौत के असबाब उसके पास आएंगे, लेकिन जहन्नम में पहुंचने के बाद फरमाया कोई भी मरेगा नहीं, और जब मौत ही नहीं आएगी तो फिर वो मौत मांगेगा ताकि मौत मिल जाए तो राहत मिल जाए, क्योंकि बंदा ये समझता है दुनिया में तो मौत मिल गई तो राहत मिल जाएगी। लेकिन कहा कि जहन्नम में मरने के बाद किसी को मौत नहीं आएगी और उसे हर अजाब के बाद अल्लाह की तरफ से ज़्यादा शदीद और सख्त अजाब होगा। इस आयत में जिन जहन्नमियों के मशरूब का जिक्र हुआ, इसकी कैफियत को अगर हम हदीस पाक में देखते हैं तो हदीस पाक सुनिए, अल्लाह हमें जहन्नम से पनाह अता फरमाए। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमी को पीप का पानी पिलाया जाएगा। जब वो पानी मुंह के करीब आएगा तो उसे बहुत नागवार मालूम होगा, और जब करीब होगा तो उसका चेहरा भुन जाएगा। यानी वो पीप का पानी इतना गर्म होगा कि एक तो पीप का पानी ऊपर से वो इतना गर्म होगा, मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो चेहरे के करीब आएगा तो चेहरा भुन जाएगा और सर तक की खाल जल कर उस प्याले में घिर पड़ेगी। जब वो पानी पी लेगा, मेरे आका फरमाते हैं कि उसकी आंखें कट कट कर निकल जाएंगी। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, फिर हुजूर ने आयत पढ़ी, वसुकू माअन हमीमन फक़त्तअ अमआअहुम, और उन्हें खौलता पानी पिलाया जाएगा और तो वो उनकी आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर हुजूर ने एक और आयत पढ़ी 15वें पारी की, वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफक़ा। अगर वो पानी के लिए फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद उस पानी से पूरी की जाएगी कि जो पिघलाए हुए तांबे की तरह होगा, जो उनके मुंह को भोर देगा,
क्या ही बुरा पीना है और दोज़ख क्या ही बुरी ठहरने की जगह है। तो यहाँ से पता चला कि जहन्नम में शदीद तरीन अज़ाबात में मुब्तला होने के बावजूद जहन्नमियों को मौत भी नहीं आएगी। और मौत का होगा क्या? जो दुनिया में मौत आती है तो इस मौत का क्या होगा? इसके मुताल्लिक भी हदीस पाक में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा, यहाँ तक कि उसे जन्नत और जहन्नम के दरमियान रख दिया जाएगा, फिर उसे ज़िबाह कर दिया जाएगा। उसके बाद एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए अहले जन्नत तुम्हें मौत नहीं, और ए अहले जहन्नम तुम्हें मौत नहीं। चुनाचे हुजूर फरमाते हैं अहले जन्नत की खुशी का कोई ठिकाना ना रहेगा और अहले जहन्नम के गम का कोई अंदाज़ा ना कर सकेगा। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिन नार व मिन गज़बिल जब्बार। हम जहन्नम के अज़ाब और गज़ब जब्बार से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। आगे इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर रिहु फी यौमिन आसिफ ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिका हुवद्दलालुल बईद। अपने रब का इनकार करने वालों के आमाल राख की तरह होंगे जिस पर आंधी के दिन में तेज तूफान आ जाए तो अपनी कमाइयों में से किसी शय पर कादिर न रहे। यही दूर की गुमराही है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी बता दिया कि काफिर ये न समझे कि वो दुनिया में उसने बज़ाहिर जो नेक अमाल किए होंगे कि मोहताजों की इमदाद की होगी, सिला रहमी की होगी, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया होगा, भूखों को खाना खिलाया होगा, मुसाफिरों की मदद की होगी, बीमारों की खबरगिरी की होगी, लेकिन ये सारे काम ईमान के बगैर उसने किए होंगे। तो फरमाया कि ये सारे काम है बड़े नेक काम, लेकिन किए बगैर ईमान के, तो फरमाया ये आखिरत में बातिल हो जाएंगे और यही मुकम्मल नुकसान है। इस आयत में उन काफिरों की आमाल की मिसाल अल्लाह ने दी कि फरमाया कि जिस तरह तेज आंधी होती है और वो कूड़ा क्रिकेट वगैरह उड़ा कर ले जाती है और उस राख के जो अज्जा होते हैं वो मुंतशिर हो जाते हैं, उसका कोई असर कोई निशान बाकी नहीं रहता। ऐ काफिरों, ऐसे ही तुम्हारे आमाल बज़ाहिर तुमने दुनिया में बहुत किए होंगे लेकिन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, उसका निशान तक बाकी नहीं रहेगा। यहाँ से पता चला कि आमाल बगैर ईमान के किए जाए उसका कोई अजर अल्लाह की बारगाह में नहीं होगा। एक हदीस पाक बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस मोमिन को दुनिया में कोई नेकी दी जाती है, यानी मोमिन है जिसने कलमा पढ़ा है, फरमाया कि उसे दुनिया में कोई नेकी अल्लाह की तरफ से उसे मिलती है तो फरमाया अल्लाह उस पर जुल्म नहीं करेगा। दुनिया में तो नेकी दी, फरमाया आखिरत में भी उसे सज़ा दी जाएगी। और रहा काफिर तो उसने दुनिया में जो अल्लाह के लिए नेकियां की हैं उनका अजर अल्लाह उसे दुनिया में दे देगा। था काफिर लेकिन की अल्लाह के लिए, कहा उसे दुनिया में अल्लाह उसका अजर दे देगा, और जब वो आखिरत में पहुंचेगा तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी कि जिसकी उसे जज़ा दी जाए। हम कितने खुश नसीब हैं कि ईमान के साथ अगर मामूली सी भी नेकी अगर की जाए तो वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, लेकिन हो अल्लाह के लिए। अल्लाह हमें सारी नेकियां हमें अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इखलास की दौलत अता फरमाए और इस ईमान की अल्लाह हमें कदर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रब्बल आलमीन, हम सब की हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमा। हम सब का मौला करीम दरस कुरान को सुनना, नमाज़ इशा अदा करना,
दुरूद पाक पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमें इखलास की दौलत अता फरमा, इखलास के साथ तेरी रज़ा के लिए सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमा। हमारे लिए सीखना सिखाना आसान कर दे, समझना समझाना आसान कर दे, अमल करना आसान कर दे। हम सबको बाअमल बना दे, बाअमल बना दे, बाअमल बना दे। सारी बदआमालियाँ बेअमलियाँ हमारी ज़िंदगियों से निकाल दे। या अल्लाह हमें अपना फज़ल करम अता कर दे, या अल्लाह हमें अपना फज़ल करम अता कर दे। मौलाई करीम तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे आका की तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर की उम्मत पर रहम व करम नाजिल कर दे। अल्लाह हुज़ूर की उम्मत की परेशानियाँ दूर कर दे, मेरे आका की उम्मत पर करम 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 फजल कर दे। जहाँ कहीं हुज़ूर की उम्मत परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह ये जितने हाज़रीन मौजूद हैं इनके दिल में जो मुराद हो पूरी फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।